Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss important topics in quantum mechanics, eigenvalues and eigenfunctions followed by simultaneous eigenfunctions. For BSc Part 3 Physics courses, in lecture number 12 of quantum mechanics. First of all, we have to discuss eigenvalues and eigenfunctions. If a well-behaved function, say psi x, that is psi under bracket x, is operated by an operator, say that operator is O, denoted by the symbol O cap, we get the same function with a number. That same function is called eigenfunction. That same function, that is psi under bracket x, is called the eigenfunction of the operator O, and that number say lambda is called eigenvalue of that operator O. Now write down, if a well-behaved function, say psi under bracket x, psi x is operated by an operator, say O cap, operator is O cap, operator denoted by the symbol O cap, we get the same function given by the relation, which is given by the relation operator O cap is operated on the operand or a well-behaved फंक्शन से साई एक्स, ऑपरेटर ओ को किसी फंक्शन साई एक्स पर, जिसे ऑपरेंड भी कहा जाता है, उस पर ऑपरेट कराया जाता है। ऑपरेटर को जिस फंक्शन पर ऑपरेट कराया जाता है उस फंक्शन को ऑपरेंड कहा जाता है। वी गेट द सेम फंक्शन साई एक्स मल्टीप्लाइड बाई लेमडा, दैट इज लेमडा इंटू साई एक्स। सेम फंक्शन साई एक्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं जब किसी ऑपरेटर ओ को उस ऑपरेंड और फंक्शन साई एक्स पर ऑपरेट कराया जाता है, तो सेम फंक्शन साई एक्स ऑब्टेन होता है जिसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड होता है, से दैट नंबर इज लेमडा। सो साई एक्स, फंक्शन साई एक्स इज कॉल्ड द eigenfunction of the operator O cap, and lambda is the eigenvalue of this operator O. Write down. Then the relation is O cap operated on wave function, which is a well-behaved function psi x. We get the result lambda, which is a number multiplied by psi x. That is same function psi x is obtained. RHS में हम देख सकते हैं सेम फंक्शन psi x है और उसी फंक्शन पर psi x पर हमने ऑपरेटर ओ को अप्लाई किया था। देन साई एक्स, देन द फंक्शन साई एक्स इज कॉल्ड आइगन फंक्शन, एंड द नंबर लेमडा which is multiplied to the eigenfunction psi x in RHS, and lambda is called eigenvalue
of the operator, say O, denoted by the symbol O cap. So lambda and psi x are the eigenvalues. Lambda and psi x are the eigenvalue and eigenfunction respectively of the operator O, which is given by the relation operator O is operated on the operand, or where we have function psi x, we get the relation lambda into psi x. Now we take an example. Suppose a trigonometric function sin 2x is operated by an operator minus under bracket d square upon dx square. We get the result 4 under bracket sin 2x. We get the same function sin 2x with a number, and that number is 4 after differentiating sin 2x twice with respect to x with negative sign. So 4 in this example, 4 is called the eigenvalue of operator minus d square upon dx square, and sin 2x is the eigenfunction of the operator minus d square upon dx square. This is an example of eigenvalue and eigenfunction. So write down minus d square upon dx square is operated. This is an operator. Minus d square upon dx square is an operator, and it is operated on a trigonometric function sin 2x. We get the result 4 under bracket sin 2x. हमने जिस फंक्शन पर दैट इज sin 2x पर ऑपरेटर माइनस डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर को अप्लाई किया था, तो रिजल्ट में आरएचएस में हम लोगों ने सेम फंक्शन sin 2x ही ऑब्टेन किया, मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर, दैट नंबर इज 4 आफ्टर डिफरेंशिएटिंग sin 2x ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू x विथ नेगेटिव साइन. sin 2x को ऑपरेटर माइनस डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, sin 2x पर जब ऑपरेटर माइनस डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर ऑपरेट किया गया, तो sin 2x को दो बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. दो बार डिफरेंशिएट करने पर विथ नेगेटिव साइन भी प्रेजेंट है, तो हमें रिजल्ट ऑब्टेन होगा 4 under bracket 4 multiplied by under bracket sin 2x. So 4 is called, in this example, 4 is called the eigenvalue of this operator minus d square upon dx square, and we get the same function that is sin 2x in RHS also. And this function sin 2x trigonometric function is called the eigenfunction of the operator minus d square upon dx square. So write down 4 and sin 2x are the eigenvalue and eigenfunction of respectively 4 and sin 2x are the eigenvalue and eigenfunction respectively of the operator minus d square upon dx square. Next topic in this video we have to discuss is simultaneous eigenfunctions. Write down an operand that is a well-behaved function, say psi x, is the
आइजन फंक्शन ऑफ टू और मोर operators then that function is said to be the simultaneous eigen functions of those operators, that is two or more operators. यदि कोई ऑपरेंड that is कोई वेल बिहेव्ड फंक्शन से psi x टू और मोर देन टू ऑपरेटर्स का आइजन फंक्शन है, दैट इज सेम आइजन फंक्शन है, तो उस आइजन फंक्शन को हम दो ऑपरेटर्स का टू और मोर देन टू ऑपरेटर्स का साइमल्टेनियस आइजन फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए वेल बिहेव्ड फंक्शन exponential function e to the power I kx, which is an eigen function of the operator minus I d upon dx belonging to the eigen value k of the operator, which is given by the relation minus I d upon dx e to the power I kx. E to the power I kx is the well behaved function, that is an exponential function. It is operated by an operator minus I d upon dx. We get the result k multiplied by e to the power I kx. K is the eigen value of the operator minus I d upon dx, and this operator minus I d by dx is applied on the function exponential function e to the power minus I kx. We get the same function, that is e to the power I kx, and e to the power I kx is the eigen function of this operator minus I d upon dx. जब ऑपरेटर किसी ऑपरेटर माइनस आई डी अपॉन डी एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स पर अप्लाई किया जाता है, तो उस ऑपरेटर माइनस आई डी अपॉन डी एक्स का आइजन वैल्यू के ऑब्टेन होता है, एंड ई टू द पावर आई के एक्स ऑपरेटर माइनस आई डी अपॉन डी एक्स का आइजन फंक्शन कहा जाता है. आफ्टर डिफरेंशिएटिंग ई टू द पावर आई के एक्स with respect to x and multiplied by minus I, we get the result k multiplied by e to the power I kx. e to the power e to the power I kx को, जो कि एक वेल बिहेव्ड फंक्शन है, कोई फंक्शन है, और इस पर ऑपरेटर माइनस आई डी अपॉन डी एक्स अप्लाई किया गया, तो e टू द पावर आई के एक्स को डिफरेंशिएट किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, एंड माइनस आई से फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि ऑपरेटर में माइनस आई मल्टीप्लाइड है, तो रिजल्ट हम ऑब्टेन करेंगे k इंटू ई टू द पावर आई के एक्स, जो सिंपल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसका यूज कर. तो ई टू द पावर आई के एक्स तो आइजन फंक्शन ऑपरेटर माइनस आई डी अपॉन डी एक्स का, एंड k को आइजन वैल्यू ऑपरेटर माइनस आई डी अपॉन डी एक्स का कहा जाता है. लेकिन e टू द पावर आई के टू द पावर x जो आइजन फंक्शन है ऑपरेटर माइनस आई डी अपॉन डी एक्स का, यह एक दूसरा ऑपरेटर, एक अनदर ऑपरेटर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भी सेम फंक्शन
सेम फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स पर अप्लाई करने के बाद अगेन ई टू द पावर आई के एक्स ही आइजन फंक्शन ऑब्टेन होता है, जबकि ऑपरेटर चेंज हो जा रहा है लेकिन आइजन फंक्शन चेंज नहीं होता है। उस सिचुएशन में उस फंक्शन को दैट इज इन केस ई टू द पावर आई के एक्स को साइमल्टेनियस आइजन फंक्शन कहा जाएगा। ऑपरेटर माइनस आई डी अपॉन डी एक्स का भी एंड अनदर ऑपरेटर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भी। इसलिए ई टू द पावर आई के एक्स बोथ ऑपरेटर्स का आइजन फंक्शन है, और उस सिचुएशन में ई टू द पावर आई के एक्स को साइमल्टेनियस आइजन फंक्शंस कहा जाएगा, जो कि दो अलग अलग ऑपरेटर्स, दो डिफरेंट ऑपरेटर्स को सेम फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स पर अप्लाई करने के बाद भी आइजन फंक्शंस ई टू द पावर आई के एक्स एंड ई टू द पावर आई के एक्स ही हैं, जबकि उनके आइजन वैल्यूज अलग अलग हैं। इसमें जब ऑपरेटर माइनस आई डी अपॉन डी एक्स अप्लाई किया गया है, ऑपरेट किया गया है ई टू द पावर आई के एक्स पर, तब आइजन वैल्यू के है, एंड जब इसी फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स पर अनदर ऑपरेटर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर अप्लाई किया जाए इसी फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स पर, तो इसका आइजन वैल्यू के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर आई के एक्स। तो आइजन वैल्यू चेंज हो गया। फर्स्ट ऑपरेटर माइनस आई डी बाई डी एक्स के लिए आइजन वैल्यू के है, जबकि अनदर ऑपरेटर सेकेंड ऑपरेटर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए अब आइजन वैल्यू क्या है, के स्क्वायर है। तो बोथ ऑपरेटर्स के लिए आइजन वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन आइजन फंक्शंस देखा जा सकता है। फर्स्ट केस में भी जब ऑपरेटर माइनस आई डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है तो उसके लिए भी आइजन फंक्शन, और उसे ऑपरेट किया गया है, उस ऑपरेटर को ऑपरेट किया गया है ऑपरेंड और एक वेल बिहेव्ड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स पर। तो आइजन फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स है, जिसे डिफरेंशिएशन के बाद ई टू द पावर आई के एक्स को एक्स के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के बाद ऑब्टेन किया गया है, उसके बाद माइनस आई भी उसमें मल्टीप्लाई है उसके करने के बाद। तो फर्स्ट केस में भी आइजन फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स ही है, एंड सेकेंड सिचुएशन में जब ऑपरेटर चेंज होकर के माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, और उस ऑपरेटर को जब सेम फंक्शन पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स पर अप्लाई किया गया, तो ई टू द पावर आई के एक्स को दो बार ट्वाइस एक्स के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर एंड फिर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है वह के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आई के एक्स ही है। दैट इज आइजन फंक्शन इज द सेम बट आइजन वैल्यूज आर डिफरेंट। आइजन फंक्शन दोनों केस में सेम है ई टू द पावर आई के एक्स, लेकिन आइजन वैल्यू डिफरेंट है। फर्स्ट केस में के है, ऑपरेटर माइनस आई डी बाई डी एक्स के लिए आइजन वैल्यू के है, जबकि ऑपरेटर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए जब फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स पर अप्लाई किया जाता है तो आइजन वैल्यू के स्क्वायर है, जबकि आइजन फंक्शन ई टू द पावर आई के एक्स ही है। Thus the function e to the power I kx is the simultaneous eigen function of the operators, that is two operators minus I d upon dx and minus d square upon dx square. Thus e to the power I kx is the simultaneous eigenfunction of the operators minus I d upon dx and minus d square upon dx square. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Peace Quantum Classes.